अहमद एक 5 साल का बच्चा है जिसको रिसेंटली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है। उसके पेरेंट्स ने कंसल्ट किया था तो उनके फॉलोइंग कंसर्न्स थे कि जब अहमद पैदा हुआ था तो उसकी जो डेवलपमेंट है दैट वाज कम्प्लीटली फाइन। उसने 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स की एज में सिंगल वर्ड बोलना भी शुरू कर दिया था, मामा बाबा। बैबलिंग टाइमली हो गई थी, नेक होल्डिंग ठीक थी, मोटर माइलस्टोन्स 9 to 12 मंथ्स तक वो कम्प्लीटली फाइन डेवलप हो रहा था। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे नोटिस्ड कि वो रिग्रेस कर रहा है। जितना बोलना शुरू किया था वो भी उसने छोड़ दिया, सोशल स्माइल नहीं दे रहा था, इमोशंस रेसिप्रोकेट नहीं करता था। जब वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा था थोड़ा शाय हो रहा था, आई कांटेक्ट नहीं करता था, सोशलाइजेशन अवॉइड कर रहा था। इवन ही वाज व्हेन ही वाज विद किड्स तो ही वांटेड टू प्ले, लेकिन उनको ऑब्जर्व ज्यादा करता था रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्ले एक्टिविटी। सो थोड़ा आइसोलेटेड रहता था, फ्रेंड्स नहीं बना पाता था। एट द सेम टाइम बिहेवियरली काफी हाइपर था, टैंट्रम्स थ्रो करता था, स्टबन था। सो पेरेंट्स काफी कंसर्न थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट किया और वहां से रेफर होकर जब वो साइकोलॉजिस्ट तक आए तो साइकोलॉजिस्ट ने उनकी काफी डिटेल इवैल्यूएशन के बाद असेस किया दैट ही वाज गोइंग थ्रू अ कंडीशन नोन एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके मल्टीपल साइंस होते हैं जो कि पेरेंट्स अगर अर्ली एज में डिटेक्ट कर पाएं तो हम इसकी टाइमली आइडेंटिफिकेशन से टाइमली मैनेजमेंट प्रोवाइड करके बच्चों की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। Assalamu alaikum. I'm Tahira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I'm working as a head consultant at Pehchan Clinic. Pehchan aims to provide mental health awareness by providing online resources and by hosting various workshops, trainings, and support group events. I am also affiliated with Integrated Health Services Children and Family Hospital as well as Institute of Medical Rehabilitation GH Islamabad. This month, we have on board Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist based in UK. His niche areas are autism spectrum disorder and ADHD. This month, we'll be hosting various videos related to autism and various aspects related to it. We would appreciate if you can drop your questions in the comment section that we can cater during the series of videos related to autism. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel and click the notification bell so that you're notified timely about all the upcoming videos. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like to stay connected to all the online resources being provided there. Thank you. सो फॉर द रीजन कि ये साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो पेरेंट्स को नोट करने चाहिए ताकि अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें, वी हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर खुर्रम सादिक टू बी अ पार्ट ऑफ पहचान्स प्लेटफॉर्म to create awareness about what exactly is autism and what are those concerns and signs that parents can look up to with reference to different age groups. So thank you so much for Dr. Khurram. You have always been kind enough to join Pehchan's platform to create awareness. We welcome you to this autism series. Sir, I would like to know, like, when a child is born, from that point onwards, what do you think are those concerns that parents should keep in mind? For example, what are those signs when the child is born, during soon after the birth, and then till the age of 3 to 6 months? Thank you very much, Tahira. It's always a pleasure, as always. कि पहचान के प्लेटफॉर्म पे, मतलब which is a very important platform साइको एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स की और साथ साथ जो communities की है. Autism is, as you all know, it's something which is very close to my heart. Autism spectrum disorder. It's a neurodevelopmental condition. इसका मतलब है in layman language के people are born with it. बचपन से होता है, ये hereditary है, genetic transmission है इसकी. अभी तक environmental factors affect करते हैं, लेकिन वो etiological factors में नहीं आते, लेकिन उसकी वजह से autism नहीं हो सकता. ये पिछली उसमें भी हमने सीरीज में भी डिस्कस किया था. तो अब जो है रेड फ्लैग्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो चीज़, वो मेन फीचर्स जिसकी वजह से आप हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स को कि वो उस चीज़ों को नोट कर लें और अपने क्लिनिशियन से बात कर लें.
उस चीज़ के बारे में। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 0 to 12 months और फिर 12 months ऑनवर्ड्स कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब बच्चा पैदा होता है यूजुअली आई कांटेक्ट अच्छा बनाता है माँ के साथ, एक कनेक्शन होता है जो इमोशनल जिसकी वजह से इमोशंस ट्रांसफर होते हैं और एक बॉन्ड बनता है। तो उन बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं होता, उनमें वो बच्चे जो हैं पॉइंट नहीं कर सकते हैं, बैबलिंग नहीं होते, किसी चीज़ पे हँसते नहीं, बहुत सीरियस फेस होता है। एज़ इफ मुझे एक माँ ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि बच्चा उनके साथ बोलने की कोशिश कर रहा है, एंड व्हेन द किड वाज ओनली 2 months ऑफ एज, टॉडलर जो था 2 महीने का था, और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, बट विद आईज, not showing any empathy or any sensitivity, just a gaze. अगर हंसाने की कोशिश करो, हंसता भी नहीं था, बैबलिंग भी नहीं करता था, बोलता भी नहीं था। तो ये तो अर्ली चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि ये इंडिकेशन हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑटिज्म के लिए आपको तकरीबन 3 साल तक वेट करना चाहिए। यूजुअली गाइडलाइंस हैं 18 महीने की, लेकिन अगर लैंग्वेज डेवलप ना हो तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे बन जाती है ऐसे बच्चे को ऑटिज्म है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद कभी कभी पता चलता है कि एक्चुअली वो जो था वो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ ऑटिज्म या उसको ऑटिज्म था, इट वाज बिकॉज द पर्सन वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। 12 महीने के बाद जो चीजें नजर आती हैं वो ये होता है कि चलना, टिप टोइंग, मतलब पाँव की उंगलियों पे चलना। उसके बाद खाने की प्रेफरेंसेस, खाना वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, कोई अगर टेक्सचर हो या वो हो, कोई ऐसी चीज हो या गुई चीज हो जैसे जेलीज हो, जेलो हो जाता है, कस्टर्ड हो जाता है, वो उसके टेक्सचर को वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं बच्चे, और उसकी वजह से वो अपने खाने की उनकी हैबिट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, और उनको कहते हैं कि दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड पैलेट, कि वो कुछ चीज़ों को, टेक्सचर को बिल्कुल डिटेस्ट करते हैं, उनको उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उन टेक्सचर्स को। फिर ये चीज़ टेक्सचर्स की जो चीज़ है ये क्लोथिंग्स में भी आ जाती है। मतलब जैसे कुछ कपड़े हैं वो कहते हैं कि इच करते हैं, टैग्स होते हैं उनको काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं टैग्स, अगर सब पीछे गर्दन पे हों या कमर के साथ हों। तो इसलिए आपने देखा है कि अक्सर कंपनीज ने अब टैग्स लगाना बंद कर दिए, और वो काइंड ऑफ उसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर ही वो एक प्रिंटेबल फॉर्म में वो चीज़ ले आते हैं कि साइज क्या है, सारा कुछ क्या है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज दिस। और जो चीज़ होती है उनकी सेल्फ हाइजीन का मसला होता है। तो सेल्फ हाइजीन में ये होता है कि वो नहाना नहीं चाहते हैं, बाथ लेना भी नहीं चाहते हैं, अगर कोई उनके बाल को कंघी करे तो वो उनके लिए मसला होता है, शोर मचाते हैं। वो नहीं होता कि वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे होते हैं, उनको दुखता है, उनके पेन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं बहुत तेज होते हैं। वो जब बाद में वर्बलाइज करते हैं, जब हमें पता चलता है, जैसे एक बच्चा था उसने 3 साल की उम्र से पर्सनल हाइजीन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, बाय द टाइम हमारे पास आया 15 साल का था, तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि किसी ने आज तक मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम ये क्यों करते हो। जब मैं शावर के नीचे जाता था, शावर इतना तेज होता था कि वो मुझे दुखाता था। तो इसका मतलब है कि आपके जो नर्व एंडिंग है इतने सेंसिटिव हैं कि, और उनको उसके ऊपर ना सिर्फ पानी बल्कि अगर कपड़े भी पहने तो कपड़े भी उसके स्किन को दुखाते थे। तो अक्सर ये होता था कि जैसे ही स्कूल से आया तो कपड़े उतार के इन पैंट्स उस बच्चे ने भागना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं ये देखो ये बदतमीज बच्चा है, ये तो मिसबिहेव कर रहा है, माँ ने तरबियत सही नहीं की है, इस किस्म की चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि इस किस्म के बिहेवियर्स होते क्यों हैं। तो अक्सर इसमें जो उनके जो नर्व एंडिंग्स होते हैं काफी हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा आई कांटेक्ट नहीं करते, आई कांटेक्ट उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, या फिर अगर आई कांटेक्ट होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की गेज होती है, कंटिन्यूस गेज होती है, जो कि विच इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर देम, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कब स्टार्ट करें, कब रोकें, कब मॉड्यूलेट करें। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपकी आंखों में देखते हैं, फिर 2 सेकंड, फिर किसी और तरफ देखते हैं, फिर आंखों में देखते हैं, फिर दूसरी तरफ देखते हैं। तो एक बच्चा था, उसने मुझे कहा कि मुझे मेरा 7 सेकंड्स रूल है, कि मैं 7 सेकंड मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, उस वक्त तक मैं आंख में देखता हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, फिर मैं 7 गिनता हूँ, दोबारा मैं आंखों में देखता हूँ, फिर मैं 7 गिनता हूँ। 7 सेकंड्स पे उसका आई कांटेक्ट चेंज हो रहा था। तो ये इनिशियल चीजें हैं कि जो आपको ख्याल रखना चाहिए। प्लस
इंटरेक्टिंग विद पीपल, खासकर वो लोग जो अनफेमिलियर हों, जैसे एक्सटेंडेड फैमिलीज हों। वेस्ट में तो इतना नहीं होता, लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत होता है। तो अगर कोई मामू या फुप्पो या इस किस्म के रिश्तेदार आ गए जो कि जिन्होंने उनको नहीं देखा, तो जो दूसरे शहर में रहते हैं, वो बहुत शाय होते हैं, उनसे मिलते भी नहीं हैं, माँ के पीछे छुप जाते हैं या कमरे के अंदर जाके छुप जाते हैं। ये अक्सर नॉर्मल बिहेवियर में भी हो सकता है, लेकिन इफ इट कंटिन्यूज और वो हर एक के साथ इस किस्म का बिहेवियर हो, प्लस वो अपने कंफर्ट जोन में हो, फॉर एग्जांपल अपने साथ खेलना, अगर खिलौने खेल रहे हों तो वो उनसे एनिमेटेड तरीके से नहीं खेल सकते, इमेजिनेशन उनकी नहीं होती है। इमेजिनेशन उनकी वो होती है जो आप उन्हें देते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम दे प्रेफर टू वॉच यू रादर देन प्ले विद द टॉयज, और फिर उसको एक पैटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। कभी लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग के भी पैटर्न्स होते हैं, कलर कोडेड भी हो सकता है, उसके अलावा साइज वाइज भी हो सकता है, उसके अलावा नंबर वाइज भी हो सकता है। उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक लाइन में हो, वो एक कंसेंट्रिक भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है। उनकी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर उन वालिदैन से आप पूछें तो आपको ये बताएंगे कि बच्चा जो है टॉय लेता है, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट द मोमेंट ही ऑर्गेनाइजेज इट। जैसे एक लेगो सेट है, उसने बना लिया, या एक बच्ची है जिसने एक डॉल हाउस बना लिया, चीजों को अपनी जगह पे रख लिया है, टेबल्स, तो दैट्स इट। उसके आगे इमेजिनेटिव प्लेइंग नहीं होगी। इमेजिनेटिव प्लेइंग ये हो कि मतलब चाय बनाई जा रही है, एक कहानी चल रही है पीछे, कोई स्टोरी टेलिंग है। और कभी कभी स्टोरी टेलिंग होती भी है तो वो इट्स री इनएक्शन। री इनएक्शन का मतलब है कि जो उन्होंने देखा हुआ होता है, या अपने छोटे भाई बहनों से, या बड़े भाई बहनों से, या फिर आजकल यूट्यूब के ऊपर एक्सेस हो जाता है, वो देख लिया, और वही चीजें स्टोरी लाइन दोबारा से चल रही हैं। फिर टॉयज में खेलने का एक और तरीका होता है कि फर्स्ट करें एक बच्चे के पास एक डिंकी है या एक कार टॉय है, तो वो दे आर बेसिकली फोकस ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। जैसे पहिए वो घुमाना शुरू कर देते हैं, एंड दे आर फैसिनेटेड बाय दैट। So you're very right about that, the examples that you quoted, क्योंकि हम जब क्लिनिक में होते हैं तो मेरे पास एक बच्चा आया था, और उसका टेक्सचर्स के साथ, जैसे सालन है या जो यहाँ पर स्पेसिफिकली करीज होती हैं, उनके लिए वो बहुत इरिटेबल फील करता था और वो बिल्कुल उनको हाथ नहीं लगाता था। इसी वजह से वो बहुत अवॉइड करता था। सो जो ड्राई फूड्स थे वो प्रेफर करता था। लाइकवाइज जैसे आपने मेंशन किया अबाउट द सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉयज एंड लाइनिंग अप, तो देयर वाज अनदर चाइल्ड जो बहुत ज्यादा जैसे लाइन में चीजें रखता था, और अगर वो रास्ते में आ रही होती थी और पेरेंट्स उनको हटा देते थे, उनकी जगहों पे वापस रख देते थे, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता था और काफी देर तक उसका टैंट्रम रहता था। अबाउट द सेंसरी पार्ट वेयर यू मेंशन, देयर वाज अ वेरी डिफरेंट केस दैट आई सॉ, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी पता चला कि ये बच्चे हवा की वजह से भी पेन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर गए हैं और हल्की सी हवा चल रही है, तो उससे भी इनकी स्किन में पेन होता है, फॉर विच दे वांट के वो फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहने या कवर्ड रहें, शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहते, जो जनरली कोई पूछता भी नहीं है और बस जज कर दिया जाता है कि ये इस तरह है, ये इस तरह है। सो दे आर वेरी राइट एंड वेरी ऑब्वियस पॉइंट्स जो कि देखे जा सकते हैं। सर, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक प्ले, जैसे हमने सीक्वेंसिंग की बात की, सो हाउ डू दे प्ले विद टॉयज एंड व्हाट्स द स्टाइल, व्हाट्स द पैटर्न? देखिए, आपने बात की इसके बारे में, पहले मैं आपकी थोड़ी सी बात को कंटिन्यू करूंगा, पिछली बात में थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा। और वो ये है कि हवा की वजह से ये दिस इज अ वेरी कॉमन अकरेंस, क्योंकि यूके तो बड़ा विंडी है। तो अक्सर विंड जब होती है तो बच्चे जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें इतना ज्यादा दुखता है हमारे हमारे फेस के ऊपर या इसके ऊपर, कि हम वो बेयर नहीं कर सकते। तो जैसे विंडी होती है, विंड चलती है, तो बच्चे अंदर आ जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टे इनडोर्स बिकॉज ऑफ दैट विंड। और ये सिर्फ इस टैक्टाइल नहीं, आपके जो हेयरिंग है उसमें ये चीज होती है कि हल्की सी आवाज जो होती है, छोटे बच्चे कानों पे हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब दैट शुड बी अ साइन। और टीवी की आवाज वही कहते हैं कि मतलब कैन यू ब्रिंग इट डाउन अ फ्यू नॉचेस। और उनको इलेक्ट्रिसिटी की बजिंग सुनाई देती है, उनको टीवी की बजिंग सुनाई देती है जब टीवी स्विच ऑफ होता है।
और उनको ये कुछ चीज़ें हैं अल्ट्रासोनिक और या हाई पिच नॉइजेस जो कैट डिटरेंट्स होते हैं लगाते हैं, रैट डिटरेंट्स होते हैं कि उनको डिसिपेट करने के लिए या उनको भगाने के लिए बिल्लियों को और चूहों को, तो वो उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चा कानों पे हाथ लगाए तो एक्सप्लोर कि उसको क्या मसला हो रहा है। फिर अब टॉयज़ की बात आ जाती है। टॉयज़ आपने लाइनिंग अप की बहुत ज़बरदस्त बात की और लाइनिंग अप में ये होता है कि सिर्फ वो नहीं होता कि जब खेल रहे होते हैं ये चीज़ें, जब ये कुछ चीज़ कलेक्ट करते हैं और उनको जब डिस्प्ले करते हैं तो वो भी एक लाइन की सूरत में होती है और वो या एक सर्टेन पैटर्न होता है। अगर उस पैटर्न से वो चले जाते हैं और मतलब हल्का सा भी वो खिलौना हिला हुआ हो या वो पीस हिला हुआ हो तो उन्हें समझ आ जाती है कि कमरे में कोई आया था। कुछ बच्चे इस कुछ टॉयज के बहुत स्पेसिफिक पार्ट से फैसिनेट हो जाते हैं, जैसे गाड़ियां उठा के और उनके पहियों को घुमाना शुरू कर देते हैं, दरवाजों को खोलना और बंद करना शुरू कर देते हैं कि उसमें वो एक सेंसरी इनपुट आता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो रेत में जाके खेलना शुरू कर देते हैं, वो उनका टेक्टाइल सेंसेशन उनको अच्छी लगती है, रेत की या हमारे पास प्लास्टिसिन होता था या ब्लू टैक होता है, इस किस्म की चीजें उनके टेक्सचर्स उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो फील करते रहते हैं हमेशा। तो अगर आपका बच्चा इस तरीके का कोई काम कर रहा हो तो आप एक तो ये है कि ऑब्जर्व करें उसे, उसका लॉग बनाएं और फिर एक क्लिनिशियन को जाके दिखाएं कि ये हो रहा है, ये मैंने नोट किया, फॉर एनी एक्सपर्ट एडवाइस उस चीज के ऊपर। Right, right. Sir, where you were talking about socialization and interaction, हमारे acquaintances में एक बच्ची है, whenever like हम उनके घर visit करते हैं, वो बच्ची instead of like coming and greeting the guests, वो avoid करते हुए इस limit तक चली जाती है कि वो अपने room में जाकर bed के नीचे छुप जाती है until वो guest चले जाएं, so much so कि वो 1-2 दिन तक भी जो है वो बेड के नीचे रहेगी अगर गेस्ट स्टे ओवर करने के लिए आए, एंड शी वुड वांट कि वहीं पर उसे खाना दे दें विद लाइक डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंसेस के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि वो कमरे में नहीं आ रहे, वो बाहर ही होंगे गेस्ट, आप कमरे में आ जाओ, बट शी सो अनकंफर्टेबल कि वो अवॉइड करती है और वो कमरे में भी नहीं आती है। So, sir, like socially interact करते हुए, what are the concerns and किस age तक इनकी ये चीजें बहुत pronounced होती हैं जो parents देख सकते हैं? ये चीजें जो सोशलाइजेशन की होती है ये शुरू के एजेस में काफी प्रोनाउंस होती हैं, टीनेज ईयर्स तक काफी प्रोनाउंस रहती हैं, बाद में ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत स्किल्स वो सीखना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ आ जाता है किस तरीके से कोप करना है। लेकिन बच्चों में ये होता है कि ये नहीं होता कि वो मिलना नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मिलना भी चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से बात करनी है। लेकिन ऑटिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है। इन बच्चों के लिए एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ रीज़न। अगर आप यहाँ से वहाँ उठ के बैठे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। और हमारे यहाँ यूजुअली जो कम्युनिकेशन होता है इट्स स्मॉल टॉक, बातें, बहुत सुपरफिशियल बातें जो एक कम्युनिकेशन का तरीका है, एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए। कहीं पे वेटिंग रूम में होंगे, कोई लोग बैठे होंगे, एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देंगे, कहाँ से आप आए हैं, किस जगह से आपका ताल्लुक है, क्या है, फैमिली बैकग्राउंड पूछना शुरू करेंगे। मतलब हमारे यहाँ इस तरीके से बातें चलती हैं। अब इमेजिन करें इन बच्चों को वो बातें करना नहीं आती, वो इंडल्ज करना नहीं आता, उनके लिए एवरीथिंग हैज अ पर्पस। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिस चीज़ के बारे में वो इंटरेस्टेड हो। फर्स्ट करें उनका कोई ऑब्सेशन है, अब स्पेस का है या एनिमल्स का है या डॉग्स, मतलब कैट्स, एनीथिंग स्पेसिफिक, या लेगो का है, या जो गेम्स होती है माइनक्राफ्ट का है, या फोर्टनाइट का है, उसके बारे में अगर आप बात करें तो बहुत दे विल टॉक एट यू इन लेंथ। लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं होता। उनको ऐसी गैदरिंग में छोड़ दिया जाए जहाँ पे बहुत अजनबी लोग होते हैं, लोग जानते नहीं हैं उनको, तो इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक सोशलाइजेशन का फैक्टर आ जाता है, उनके पास वो स्किल नहीं होता सोशलाइज करने के लिए। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे प्रीएम्प्ट करते हैं, जैसे उनके पास स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं जहन में, कि मुझे बच्चों ने बताया कि 7 साल के 8 साल के, कि हम सवाल सोच के जाते हैं लेकिन फिर हमें डर होता है कि हम अगर सवाल खत्म हो गए तो फिर क्या होगा, और फिर हम आगे कॉन्वर्सेशन कैसे चलाएंगे। तो अगेन इट्स अ स्किल, लैक ऑफ स्किल सेट।
दूसरी बात होती है चेंज की। हमारे यहाँ तो मेहमान मुंह उठा के आ जाते हैं, मतलब कोई आपकी वार्निंग नहीं होती है, कुछ वो नहीं होता। हमारा सिस्टम इस किस्म का है, सोशल इंटरेक्शन इस किस्म का है कि घंटी बजी तो बाहर देखा कि जी 6 लोग खड़े हुए हैं, कोई वार्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस बच्ची के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। दैट्स अ मेजर चेंज। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, वजह क्या है, मैं बात क्या करूं इनसे, मैं अगर इंटरेक्ट करूं तो क्या करूं, ये कितने अरसे के लिए आए हैं, कितनी देर रुकेंगे, ये किस जगह पे जाएंगे, ये मेरे कमरे में तो नहीं आ जाएंगे, ये मेरे से बात करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। तो ये चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, इतने सवालात। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ठीक है, हमें अगर फॉरवर्डिंग नहीं होती, एक जगह पे जाके आप उस बच्चे के पास आपको बता दें कि देखो ये लोग हैं, इसलिए आए हैं, ये हमारे पास ये छह लोग हैं, इसमें से 2 बच्चे हैं, ये 4 ये हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, ये 4 घंटे के बाद चले जाएंगे। मतलब उनको टाइम दें। अगर 2 घंटे के बाद भी उन्होंने जाना है तो आप 4 घंटे का टाइम दें, क्योंकि 2 घंटे के बाद उनका सवालात फिर से शुरू हो जाएंगे कि अभी तक गए क्यों नहीं है, ये अभी तक बैठे क्यों हुए हैं। तो इस किस्म की चीजें, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सोशलाइजेशन का सिर्फ वो नहीं होता, प्लस सेंसरी। अगर वो टैक्टाइल हैं बहुत, तो अपने आप को किसी को करीब नहीं आने देंगे। हमारे यहाँ सबसे कॉमन चीज क्या होती है, जैसे ही बच्चा देखा तो मतलब गाल को खींचना शुरू कर दिया, किस करना शुरू कर दिया, कडल करना शुरू कर दिया, हक करना शुरू कर दिया। ये कॉमन चीजें हैं हमारे इसमें, हमारे कल्चर में, बल्कि हर कल्चर में ये है। तो वो उस चीज को, अगर टैक्टाइल है तो दे डोंट वांट एनीबॉडी इन देयर पर्सनल स्पेस। उनको नहीं पता वो बंदा उनकी पर्सनल स्पेस में क्यों आ रहा है, वो क्यों कर रहा है। प्लस उनको अगर टैक्टाइल है तो अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुरा लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कभी कभी दर्द भी महसूस करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि आई डोंट लाइक टू बी हग, क्योंकि वो इतना जोर से मुझे खींचते हैं, मेरा सांस रुक जाता है और मैं सफोकेशन फील करता हूँ। तो इस किस्म की चीजें डिफरेंट तरीके से उन बच्चों में होती हैं। तो आपको ये मल्टीपल चीजें, एक इस सोशलाइजेशन का मतलब नहीं है कि वो चेंज, सोशलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि उनके पास सोशल स्किल नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट व्हिच यू हैव टू एक्सप्लोर। Right. Sir, when it comes to like change, उसके साथ ही interactions हैं. So, sir, what about sharing? Like generally ये assume किया जाता है और बात होती है, या observe भी किया गया है कि they have difficulty sharing their emotions, sharing their stuff with people. So, what would you say about sharing? देखिए, शेयरिंग जो इमोशन की बात होती है, अगर आप इन बच्चों से पता कर रहे हैं तो उनको अपने इमोशंस का खुद भी समझ नहीं आता कि उनके जहन में जो चल रहा है ये है क्या। ये खुशी है, ये गम है, ये डर है, ये एंग्जाइटी है, ये एजिटेशन है। जब उनको अपने इमोशन समझ नहीं आते तो एक तो ये वर्बलाइज कैसे करेंगे। चलें, वर्बलाइज कर दिया, यूजुअली दे आर इरप्ट। बेसिकली जो टैंट्रम होता है, दिस इज एन इरप्शन ऑफ देयर इमोशंस। एकदम से वोल्केनो की तरह फटता है, क्योंकि इतने अरसे से उन्होंने कैप करके रखा होता है। तो उनको एक ही तरीका नजर आता है। जब वो अग्रेसिव होते हैं तो कोई उनके पास आता नहीं है, उनको अकेला छोड़ देता है। और यही होता है कि अगर टेंट्रम्स हो तो आप उनके करीब मत जाएं, उनको गिव देम देयर स्पेस एंड गिव देम टाइम टू मतलब वो कि मेलो डाउन हो जाए। ठीक है, लेकिन इमोशंस की एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि उनको नहीं पता कि अगर वो बताएंगे, शेयर करेंगे, तो उस बंदे का एक रिएक्शन क्या होगा। ये उन्हें पता नहीं होगा कि किस तरीके से मैं शेयर करूं, किसके साथ शेयर। Sir, by now, as we have discussed कि socialization में interaction इनकी difficult होती है, skill है जो ये with time सीखते हैं। इसी तरह हमने emotions की बात की, expression की बात की, understanding की बात की. So sir, when it comes to their cognitive abilities, so generally जब parents आते हैं तो वो ये कहते हैं ये बात समझता ही नहीं है, इसको ये हमें समझा नहीं पाता, ये जो बातें करता है वो हमारे जिस किस्म की थॉट्स और स्टोरीज ये लेकर आता है वो हमारी समझ में नहीं आती, आउट ऑफ लाइक कॉन्टेक्स्ट होती हैं। सो थिंकिंग वाइज और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वाइज ASD के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जो पेरेंट्स अगर पिक करें विद रेफरेंस टू लाइक इनिशियल ईयर्स, जब इन्फेंसी है या अर्ली स्कूल ईयर्स हैं। तो सही। तो जहाँ तक स्पीच की बात है, स्पीच का यूजुअली इन्हें डिफिकल्टीज होती है, स्पीच इनमें लेट होती है। और ये इसलिए नहीं होता कि वो बोल नहीं सकते। कुछ बच्चे इनमें बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो मेंटलाइज करते हैं चीज़ों को।
अपने दिमाग के अंदर वो स्पीच डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं और फिर इवेंचुअली ऐसा होता है जैसे 4 साल की उम्र में एकदम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और मतलब दे सरप्राइज एवरीबॉडी बट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन देयर हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि उनका ये होता है कि कोई गलती नहीं करनी। फिर ये बच्चे बहुत डायरेक्ट होते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मतलब इन द प्योरेस्ट फॉर्म जो आपको है ना कि हमने एज ह्यूमन काइंड हम बिकॉज वी हैव इवॉल्व तो हम हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, हमारी लीनियर थिंकिंग नहीं होती। लीनियर थिंकिंग ये है कि से इट एज द पर्सन सीज इट। तो उनके लिए बहुत डायरेक्ट किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो बोलना पड़ता है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस भी देनी है तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो कि बेटा उस कमरे में जाओ, उस पलंग के ऊपर इस जगह पे ये चीज़ पड़ी होगी, आपने उसे उठा के नीचे मेरे पास ले आना है। या आप उसे कहो ना कि अच्छा उस कमरे में वो चीज़ पड़ी होगी ज़रा ले आओ, उस कमरे में किस कमरे में कौन सी चीज़ किस जगह पे। तो इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है। तो यू हैव टू बी वेरी डायरेक्ट विद देम। उनको एक एक चीज़ जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत क्लियरली एरिया स्पेसिफाई करके जगह स्पेसिफाई करके आपने बताना होगा, तब आपकी बात समझ जाएंगे। दूसरा ये है कि एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज जहाँ पे एम्बिग्विटीज होती हैं लैंग्वेज की या मेटाफोरिकल लैंग्वेज होते हैं, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब जमीन जुम्मत ना जुम्मत गुल मोहम्मद, इस किस्म की चीजें, ये जो 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 मेटाफोर्स हम बोलते हैं, या इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, लाइक ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? दे डोंट अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप उनको उसका बैकग्राउंड देंगे कि जैसे ये मेटाफोर कैसे ओरिजिन में आया और कैट्स एंड डॉग्स का कॉन्सेप्ट क्या था जब ये बारिश गिर रही थी और जब हैवी बारिश होती है, तो वो फिर उस चीज को समझ आते हैं। लेकिन फिर भी उनके विजुअलाइजेशन में जैसे कहते हैं ना कैट्स एंड डॉग, तो विजन में उसकी ये होगा कि कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं ऊपर से, ओके। पर उनको दे फाइंड इट वेरी फनी एंड ऑकवर्ड। लेकिन उनको ये होता है कि ये एक्सप्रेशंस किस किस्म के एक्सप्रेशंस हैं। फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलना शुरू कर देना, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में बात करना आते हैं। उनके लिए कम्युनिकेशन ये है, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज। तो वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो बात करेंगे जो उनको इंटरेस्ट में होती है। वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हाँ कोई बात कर रहा होगा एनिमेशन के बारे में, तो वो एनिमेट्रॉनिक्स ले आएंगे। फिर एनिमेट्रॉनिक्स के ऊपर वो बताना शुरू कर देंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको किसने वो इन्वेंट किया, कौन कौन से लोग थे जिसमें जो इसमें इन्वॉल्व थे। या अगर वो कोई एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है तो अपने वो डॉग कुत्ते की बात करना शुरू कर देगा, बिल्ली की बात कर, उसके ऊपर ब्रीड्स में चला जाएगा कि कैट्स कितनी ब्रीड्स होती हैं, ये यहाँ पे खाता है, और दूसरे को लगेगा कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। क्योंकि उनके लिए कम्युनिकेशन ये होता है कि उन्हें अपने आइडियाज बाहर रिलीज करने होते हैं। तो किसी तरीके से कोई भी कन्वोक कर रहा होगा तो वो दे विल इंटरप्ट द कन्वर्सेशन। तो फिर तरीका उनका ये है कि मतलब यू हैव टू ब्रिंग इट बैक कि बेटा मैं ये बात कर रहा था, आपसे मैं बात उस वक्त करूंगा थोड़ी देर में, 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ और इस चीज के बारे में बात करूंगा आपसे। दिस इज हाउ यू स्टीयर देम। फिर cognitive abilities, they are smart kids, most of them। 30% ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जैसे आईक्यू जो होता है या बॉर्डर लाइन होता है, यानी नीचे होता है बॉर्डर लाइन से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्मार्ट किड्स और उनको पैटर्न्स, अब उनमें तरह तरह की किस्में हैं। कुछ लोग पैटर्न्स रीड करते हैं, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं, जैसे कुछ ड्राइंग वगैरह करते हैं, अटेंशन टू डिटेल। ऐसी 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा इतनी डिटेल ड्राइंग करेगा या स्केचेस बनाएगा कि मतलब इट्स एन आई ओपनर फॉर पीपल। फिर लॉजिकल होते हैं, जैसे मैथ्स और साइंस में उनका दिमाग ज्यादा चलता है। या फिर मतलब साइंटिफिकली होते हैं, मतलब एक साइंटिफिक लॉजिक उनके पास होता है जो कि मतलब साइंस में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेस वगैरह, दैट दोज थिंग्स दैट मेक सेंस टू देम। तो उनकी एबिलिटीज भी डिफरेंट किस्म की होती हैं। कुछ लोग पजल सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, तो मतलब ही वाज 50 इयर्स ऑफ एज और वो क्राइसिस में हमारे पास आया। तो इट वाज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग कि हमने पता चला है कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इस बंदे में है। उस बंदे की कोई एजुकेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सीईओ के लेवल तक गया था, इसलिए क्योंकि ही वाज वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसको कोई प्रॉब्लम ला के दो तो उसके वो 10 सॉल्यूशंस आपको दे देता था। किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो या रिसोर्स प्रॉब्लम हो,
इस किस्म का। और वो he started climbing up the ladder till he went to a stage कि वो CEO बन गया कंपनीज का, फिर उसने जॉब्स चेंज करना शुरू कर दी। तो his skill was कि वो एक प्रॉब्लम को उठाता था, उसके सॉल्यूशंस देके, एक आम बंदे के लिए शायद उसका एक भी सोल्यूशन ना हो या 2 सोल्यूशन हो, वो बंदा 10 सॉल्यूशंस आपको दे देता था कि ये इस तरह होगा, हर एक इंट्रिकेट डिटेल्स बता के देता था। एंड दैट पर्सन did not complete even his GCSEs. तो आप assume नहीं करते ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कि बच्चा जो है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कम है, अनलेस के बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी साथ है, देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। या आपका कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या कोई आपकी जीन मिसिंग है वहां पे उस पूल में, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, लेकिन अदरवाइज दे आर वेरी स्मार्ट किड्स। So sir, as we discussed about cognitive abilities, जो इनकी cognitive thinking patterns हैं, वो आपने mention किया कि किस तरह के होते हैं। सर एक बहुत कॉमन सिम्टम और साइन जो ASD के साथ होता है वो सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ बिहेवियर होता है, जिसको जनरली स्टीरियोटिपिकल या रेपिटेटिव बिहेवियर कहते हैं, जिसमें रेपिटेटिव स्पीच का कॉन्सेप्ट भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बच्चा आया, वो पूरी कॉन्वर्सेशन में जितनी भी बात करता था उसमें वो 1-2 लाइंस कि मेरा घर बेनज़ीर भुट्टो शहीद रोड पर है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये स्टेटमेंट हर अपनी बात में ज़रूर बोलता था। लाइकवाइज हमारे पास एक और बच्चा है जो जब भी क्लिनिक में फॉर थेरेपी आता है वो जनरली मेरे रूम में एंटर होता है, आकर एक स्पेसिफिक विंडो पर जाता है, आके चेयर को 3 दफ़ा मूव करता है, उसके बाद दूसरी विंडो पे होके फिर वो थेरेपिस्ट के साथ उसके रूम में जाता है। एंड दिस इज़ द पैटर्न। अगर हम इसे इंटरप्ट करें तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, अपसेट हो जाता है, और जब हम उसे पैटर्न कंप्लीट करने देते हैं तो वो बहुत इजीली थेरेपिस्ट के साथ चला जाता है बाद में। सो सर इस तरह के कुछ पैटर्न्स या कुछ ऐसे स्पीच में रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं जो ASD में कॉमन हैं? बिल्कुल, सिर्फ स्पीच में नहीं, ये उनके बिहेवियर्स में भी बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपने बताई कुर्सी वाला। कभी कभी ऑब्सेसिव कंपल्सिव वो भी होते हैं, सिम्टम्स भी होते हैं इन बच्चों में। तो वो दे हैव टू डू अ सर्टेन थिंग इन अ सर्टेन ऑर्डर। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो न्यूमेरिकली बाउंडेड होते हैं कि हमने अगर कोई चीज़ करनी है तो इवन नंबर्स में करनी है, हमने ऑड नंबर्स में नहीं करनी है। तो वो जब काम करते हैं 4 दफ़ा करते हैं या 2 दफ़ा करते हैं या 6 दफ़ा करते हैं, तो उनके जहन में पैटर्न्स होते हैं और पैटर्न्स बिल्ड होते हैं। अगर उसको डिसरप्ट करें तो जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है कि एंजाइटी होती है, एजिटेशन होती है, तो उसमें टेंट्रम्स हो जाते हैं। स्पीच में भी यह है कि अगर कोई उन्हें लफ्ज अच्छा लग गया तो वो रिपीट करते रहते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपीट करेंगे, ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करेंगे, और डिफरेंट एक्सेंट्स में रिपीट करेंगे। और आपको पता चलेगा कि अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हैं या इंग्लिश एक्सेंट में बोल रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोल रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से उन्हें सुना होता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको उस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। दे फील गुड अबाउट इट। ये तो लैंग्वेज और बिहेवियर्स की बात आ गई। आपके जो हैबिट्स हैं वो भी रिपीटेटिव हो जाती हैं, मतलब उन बच्चों की या उन लोगों की जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होते हैं। जैसे अगर उन्हें कोई आउटफिट अच्छा लग गया तो दे वेयर द सेम आउटफिट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि उनको अपना आप अच्छा लग रहा होता है, बी उसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, सी जब उनका कंफर्ट लेवल हो जाता है तो चेंज नहीं करना चाहते। तो अक्सर ये मैंने देखा है कि जब एडल्टहुड में जाते हैं तो वो एक ही आउटफिट जो है ना वो डिफरेंट कलर्स में ले लेते हैं, जैसे सेम मटेरियल और सेम डिजाइन लेकिन डिफरेंट कलर्स, 6-7 डिफरेंट कलर्स, या सेम कलर के 7 आउटफिट सेम डिजाइन वो ले लेते हैं। ब्रांडिंग भी सेम होगी उसकी, वो ब्रांड भी, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, वो उनकी बॉडी के ऊपर अच्छा बैठ रहा होता है। फिर कुछ लोग जो होते हैं मूवी क्लिप्स रिपीट करते हैं या मूवीज देखना रिपीट करेंगे। कि मैंने उस दिन किसी से बात की तो कहते लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैंने इतनी दफ़ा देखी है। मैंने कितनी दफ़ा? तो कहता है कि पूरी सीरीज मैंने तकरीबन 1000 टाइम्स देखी होगी। कहता है मैं हॉबिट से शुरू करता हूँ, सुबह 8 बजे शुरू करता हूँ और रात के 10 बजे तक मैंने पूरी हॉबिट सीरीज खत्म की होती है। फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे आता हूँ दूसरे दिन, इसी तरीके से मैं ख़त्म करता हूँ। और उसमें कुछ सीन्स होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं एक मूवी में एक सीन तक जाएंगे क्योंकि वो सीन का इंतजार करेंगे, जब सीन चला जाएगा तो या वो तो रिपीटेडली उसे देखेंगे
या फिर दे विल स्टॉप द मूवी और उस चीज को वहीं पे खत्म कर देंगे। कुछ लोगों का होता है कि मैंने सारा कुछ देखना होता है, वो इसलिए होता है कि उनको उनका कंफर्ट जोन होता है, उन्हें पता होता है कि आगे आगे क्या है, कोई सरप्राइजेस नहीं है उनके लिए। एक मूवी उन्हें अच्छी लगी और उसमें कुछ सीन्स उन्हें अच्छे लगे और उनके कुछ कैरेक्टर्स अच्छे लगे, वो उसी तरीके से करेंगे जो उनके जहन में होता है कि बिहेव करेंगे। नई मूवीज देखते हैं तो दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट और उनको पता नहीं होता कि अगले सीन में हो क्या रहा होता है। ऑटिज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नॉट नोइंग द अननोन, उनका एक डर होता है। इस वजह से वो किसी चेंज को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इस वजह से वो रूटीन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उस वजह से वो उसके लिए वो सारी चीज़ें जो सर्टन बिहेवियर्स हैं रिपीट करते हैं, सर्टन हैबिट्स हैं उनकी रिपीट हो जाती हैं। जैसे खाना है, अगर उन्हें कोई एक अच्छा फूड डिश अच्छी लग गई है, जैसे किसी को कोफ्ते अच्छे लग गए, तो वो अगले 4 महीने तक उसके लंच में और डिनर में कोफ्ते ही होंगे। अगर वो उसको किसी को चिकन अच्छा लगा है डन इन अ सर्टेन वे बारबेक्यू, तो वो उसी रूटीन में चल के 3 महीने 4 महीने एक ही डिश खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। मैंने एक साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो यूनिवर्सिटी गए तो कहते हैं मेरी जिंदगी आसान हो गई क्योंकि मैंने ट्यूना मतलब कॉर्न एंड ट्यूना सैंडविच लेना होता था और मैं लंच में खाता था। 2 साल तक मैंने सिर्फ ट्यूना एंड कॉर्न सैंडविच खाया और सुबह शाम। कुछ लोग ये बताते हैं कि मैकडोनल्ड्स का एक मैक बर्गर जो है, बिग मैक जो है, वो सुबह शाम लंच और डिनर में वो 3 साल तक खाते रहे, बिकॉज दे गेट यूज्ड टू द सेमनेस, वो सेम चीज को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अगर वो चीज बदलेंगे तो क्या वो खाने को दोबारा से उसी तरह एंजॉय कर सकेंगे जो अभी एंजॉय कर रहे हैं। उसका फ्लेवर क्या होगा, उनको नहीं पता कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, उसको नहीं पता किस तरीके से बना होगा। तो और उनको नई चीज पसंद करने के लिए हो सकता है ऑटोमेटिकली दूसरी जो चीज खाएं उन्हें पसंद आ जाए तो वो उस पैटर्न में चली जाए, या फिर पसंद ना आए तो फिर दे हैव टू मूव फ्रॉम वन थिंग टू अनदर टिल दे फाइंड समथिंग जो फिर वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो रेपिटेशन का ये होता है, इट्स द कंफर्ट जोन, दे नो व्हाट्स कमिंग देयर वे, फ्लेवर्स में भी, कपड़ों में भी, मूवीज में भी, एक्शन में भी, रूटीन्स बनाने में भी। इस वजह से अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियस हो जाए, फर्ज करें आप उन्हें कहते हैं कि 10 मिनट बाद हमने जाना है पार्क, उस पार्क, लाइक क्यों जाना है, किस लिए जाना है, मुझे बताया क्यों नहीं किया, they will be very uncomfortable. If they had been there before तो थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे, अगर बिल्कुल उस जगह पे नहीं गए होंगे तो ज्यादा अनकंफर्टेबल होंगे, उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं। You have to understand कि there's not one thing that is going on with them. उनको अगर चेंज होता है तो उनको पता नहीं होता कि वहां पे लोग होंगे, नहीं होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, क्या कर रहे होंगे, उसके पास तो नहीं आएंगे, और वो कोई उनके माँ बाप से मजबूर तो नहीं करेंगे उनके साथ खेलने पे। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स प्लस एक नई इन्वायरमेंट है, किस किस्म की इन्वायरमेंट होगी, आने का रास्ता कहाँ होगा, जाने का रास्ता कहाँ होगा, हम पार्क कहाँ करेंगे, हमने कहाँ से निकल के जाना होगा, वहाँ पे कोई खाने पीने की जगह होंगी, दुकानें होंगी, यहाँ से मैं ये चीज ले सकूंगा। तो everything is going on in their head basically. So you have to understand that this is why they keep sticking to the same thing over and over again, because they do not like surprises. And sir, this is probably the reason जिसकी वजह से ये एक specific routine follow करते हैं, sleeping time, waking up, इनके पढ़ने का या खाने पीने का specific patterns होते हैं जो अक्सर पेरेंट्स हमें रिपोर्ट करते हैं कि अगर वो टाइम पे ना हो तो ये बहुत अपसेट हो जाते हैं। जैसी भी सिचुएशन हो, एक स्पेसिफिक पैटर्न पे ही सोएंगे, उसी टाइम पर उठेंगे, और अगर कहीं पे जाना भी हो, सो एज यू मेंशन कि उनको 10 मिनट पहले अगर बताएंगे तो वो जनरली यही होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनको बहुत एजुकेट करना पड़ता है, समटाइम्स पिक्चर्स दिखाकर या डिफरेंट फॉर्म्स में उनका माइंड मेकअप करते हैं ताकि वो उससे थोड़ा से अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा उससे कंफर्टेबल हो जाए, क्लियर हो उनके क्वेश्चंस, तो फिर जाके वो बच्चे मान जाते हैं। सो सर, व्हेन वी टॉक अबाउट के ये रूटीन पैटर्न्स फॉलो करते हैं, स्टीरियोटिपिकल स्पीच एंड बिहेवियर की हमने बात की, सर इसके साथ ही एक प्रॉब्लम जो जनरली आ रही होती है, दैट इज़ अबाउट हाइपर एक्टिविटी एंड टैंट्रम्स, एग्रेशन। सो उसी में पेरेंट्स अक्सर कंसर्न होते हैं अबाउट दी स्टबर्ननेस।
कि ये एक किसी बात पर अगर आ जाते हैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो अपनी बात को छोड़ते नहीं हैं। सो व्हाट वुड यू से अबाउट द बिहेवियरल पिक्चर जिसमें हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन या स्टबर्ननेस आती है? ठीक। अच्छा देखिए, हाइपर एक्टिविटी तो के दो रीजन हो सकते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ों को हम हाइपर एक्टिविटी बना देते हैं क्योंकि हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है। किसी ने मुझे कहा कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव है, तो मैंने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा देखो ये देखें। तो वो बच्चा पलंग पे चढ़ के वो हाथ फ्लैप कर रहा था इस तरह। ठीक। फिर वो एक जगह जाके खड़ा होकर जंप कर रहा था। तो मैंने कहा कि इज दिस व्हाट यू आर रेफरिंग टू एज हाइपर एक्टिव? तो कहता है हाँ। मैंने कहा दिस इज नॉट हाइपर एक्टिविटी, दिस इज अ स्पेसिफिक मूवमेंट, क्योंकि वो एक मूवमेंट करके उन्हें आराम मिलता है, उनको उनके लिए वो सूदिंग होती है। मतलब मेरे साथ एक 50 साल का बंदा था जिसको मैंने इंटरव्यू किया। उसने कहा कि मैं जब बिस्तर में जाता हूँ तो बिस्तर में लेट के मैं पाँव मारता हूँ बिस्तर के ऊपर करीबन 10-15 दफा, एंड आई फील सो गुड अबाउट इट, एंड दिस इज माय हैबिट। लेकिन अगर आप इसको हाइपर एक्टिविटी कहें तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट हाइपर एक्टिविटी, दीज आर स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स। ठीक है। जिनकी वजह से उनको वो उसको थोड़ा सा काम हो जाते हैं, उनको सूदिंग फीलिंग होती है उन्हें। जैसे कुछ बच्चे जो है दे स्पिन अराउंड, घूमते रहते हैं एंड दे लव इट। या एक रिवॉल्विंग चेयर मिल गई तो उसमें घूमना शुरू कर दिया, या एक सर्कल में घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने किसी से पूछा कि सर्कल में क्यों, तो उसने कहा कि इट हेल्प्स मी टू काम डाउन। एक और बच्चे ने कहा इट हेल्प्स मी टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। दिस इज नॉट हाइपर एक्टिविटी, दीज आर स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स। हाइपर एक्टिविटी अगर हो, हाइपर एक्टिविटी ये होती है कि बंदा बहुत फिजटी है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी है उसमें, क्लाइम करता है, गिरता है, पड़ता है, दुखता है, लेकिन वो रिलेंटलेस होता है। दैट कुड बी पार्ट ऑफ ADHD, जो कि कोमॉर्बिड है in at least 30 to 40% of cases of autism spectrum disorder. तो वो that's a different assessment. तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि हाइपर एक्टिविटी है या स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स हैं। ठीक। फिर आपने ये कहा कि बहुत स्टबन हो जाता है। अक्सर जो एग्रेशन मैं देखता हूँ वो ये होता है कि दे आर फिक्स्ड इन द बिहेवियर्स, और उनको एकदम से कुछ कहा जाता है और वो द एक्सपेक्टेशन इज दे हैव टू चेंज इट इमीडिएटली। मतलब ये बहुत रेजिमेंटेड रूटीन जैसे स्कूल्स में होती हैं, विदाउट एक्सप्लोरिंग द किड्स नीड्स, तो वहां पे बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। एक दफा कल मैं देख रहा था एक बच्चे को, तो उससे कहा कि तुम एग्रेसिव हुए हो? तो कहता है नहीं। तो माँ ने कहा नहीं, एक दफा हुए थे, तुमने लंच बॉक्स उठा के मारा था। तो कहता हाँ मैंने मारा था। तो टीचर को क्यों मारा था? इसलिए क्योंकि वो मुझे टॉयलेट जाने नहीं दे रहा था। तो कहते हैं द रीजन वाज नॉट कि टॉयलेट नहीं जाने दे रहा था, ही वाज गिविंग अ वेरी इलॉजिकल रीजन फॉर मी नॉट गोइंग टू टॉयलेट। उसको कैसे पता कि मुझे टॉयलेट आया कि नहीं आया? ठीक। उस वजह से वो अग्रेसिव हो गया, गुस्से में आ गया, प्लस उसकी टॉयलेटिंग की प्रॉब्लम थी, और इस वजह से गुस्से में आया कि मेरी तो एक प्रॉब्लम है, मैं एक सच तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे सच को क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक। ये होता है। दूसरा, एग्रेसिवनेस ADHD के साथ भी आती है, क्योंकि ADHD में इम्पल्सिविटी होती है, और इम्पल्सिविटी की वजह से वो बच्चा जो है एकदम रिएक्ट करता है। मतलब ADHD में क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जो होता है वो ये होता है, थॉट आई और आपने एक्ट किया इस तरीके से, तो वो वहां पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और ये मतलब आगे बात हम करेंगे कि डुअल में जो होता है वो ADHD और ASD का कैसे बैलेंस होता है। दैट इज अमेजिंग टू वॉच। मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड इट इज अ स्पेक्टिकल बेसिकली। मतलब ये इस किस्म की चीज है कि जो मैं सोच के I get euphoric about it. It is such an amazing thing how they keep a balance between the two. तो ये मतलब that's a different discussion for a different day. लेकिन ये चीज करें कि अगर बच्चा अग्रेसिव हो रहा है तो पहले से उसे बता दें, प्रिपेयर कराएं उसको। इन बच्चों को दूसरों के पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है, और हमारे यहाँ तो आर्ग्यूमेंट्स वैसे ही होते हैं। मतलब पॉलिटिक्स पे होते हैं, या वैल्यूज पे होते हैं, या सोच पे होते हैं, और हर एक का ये होता है कि मेरा जो एस्पेक्ट है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। हम एक दूसरे को कन्विंस करना चाहते हैं, एज अ माँ बाप भी हम बच्चों को कन्विंस करना चाहते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये सही है। जबकि इस किस्म का नहीं होना चाहिए। द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज कि उन्हें अपना पर्सपेक्टिव बताएं कि दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग, दिस इज व्हाई आई एम थिंकिंग, और फिर उसे कहें कि
you don't have to give me an answer now. Think about it and come back to me whenever you're comfortable. आप देखेंगे कि एग्रेशन उनका काफी कम हो जाएगा। और अगर आप उन्हें मौका देंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या मौका देंगे कि वो अपना रैशनल बता सकें कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अक्सर ये होता है कि वो जब ऑटिज्म वाले बच्चे बोल रहे होते हैं तो बिकॉज दे से इट एज दे सी इट, ठीक है, और उनमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता। तो अक्सर कोई बात कहते हैं जो दूसरे बंदे को ब्लंट लगती है। कोई आया मेरे पास कि मैं बताऊं मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उसने कहा कि तुम बहुत फजूल लग रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुम जिस तरीके से ड्रेसअप हुए। और वो बंदा खफा हो गया, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पास कोई पूछने आए तो हमेशा आपने अच्छा बोलना है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्टेशन के साथ आया होगा। कोई भी आपसे सवाल इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसका गलत जवाब दें या आप उसका नेगेटिव जवाब दें, वो हमेशा से सोच के आता है मैं इससे पूछूंगा तो ये मुझे अच्छी बात बताएगा। तो वो बच्चा है वो तो सच बोलेगा, क्योंकि उसकी जीन्स में सच बोलना है, वो तो ऑनेस्ट होगा। तो आपको बताएगा आप बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे आज, आप फजूल हैं, जो पहले आप थे वो सही थे। उस पर खफा हो जाएगा। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि ये मुझ पर क्यों खफा हो गया। अगर इसको खफा होना था तो मुझसे क्यों पूछा, और अगर पूछा तो मैंने सच बताया तो सच पे क्यों खफा हो गया। तो मैं इसे क्यों सॉरी करूं, मैं तो सच बोला है, बात तो सही है, बोला तो सच है। तो ये आपको पर्सपेक्टिव्स अंडरस्टैंड करने चाहिए। मतलब ये यहाँ पे साइको एजुकेशन इज सो वैल्यूएबल कि वेयर इज द चाइल्ड कमिंग फ्रॉम। वो मिसबिहेव कर रहा है, वो बदतमीज है, एंड दिस इज हाउ ही सीज थिंग्स, वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी लीनियर। राइट सर, दैट रिमाइंड्स मी कि यहाँ पर कुछ लोग जनरली ऐसे मौक़ों पर लीडिंग क्वेश्चंस करते हैं, हमें अच्छा लग रहा हो ना, सो अब अगले को वो आपने सजेस्ट भी किया हुआ है साथ साथ, और अगर वो कह दे कि नहीं, तो फिर आगे से कहते ओहो तुम्हें कुछ नहीं पता। सो इवन देन लाइक एन ASD वुड बी थिंकिंग कि अच्छा मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो बता रहा था, मुझे पता था, और आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट ट्रूथ, लेकिन वो उसको अपने आप को भी जस्टिफाई करके बच्चे को दोबारा कंफ्यूज कर देते हैं। यही होता है हमारे इसमें, क्योंकि कुछ ASD की इनसाइट्स इतनी जबरदस्त होती हैं, मतलब लिटरली मेरे कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनसे बात करते हुए। तो मैं खातून को क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं बचपन के बारे में क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों, मतलब व्हाई डिड यू फील डिफरेंट। तो उसने बहुत कहा बिकॉज आई एम अगली, आई नो इट, एंड द अदर थिंग इज के पीपल लाइक टू नो द सेम थिंग, दे डोंट लाइक डिफरेंट। एकदम से मतलब थॉट प्रोसेस मेरा शुरू हो गया कि वाकई हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज पसंद नहीं आती है। हम एक चीज को एक ही जाविये से देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ना, तो वो हमें लगता है, मतलब हमेशा से अगर आप देखें कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज जो रिसर्च होती हैं, या वो होता है कोई आइडिया जब से सबसे पहले जब इंसान ने कहा होगा कि मतलब हम चांद पे जा सकते हैं या हम उड़ सकते हैं, तो लोग जो खड़े होंगे वो तो उनको तो हंसने का मौका मिल गया होगा। और यही होता है कि कोई चीज डिफरेंट लेके आए तो हमेशा सबसे पहले हम उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसने बहुत सही बात की, उसने जिस तरीके से कहा ना, मुझे थोड़ा सा वो भी हुआ कि मतलब मैं अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि हम लोग किस किस्म के हैं। कि उसने कहा आई नो आई एम अगली बट दे पिक मी फॉर इट, एंड बिकॉज पीपल डोंट लाइक डिफरेंट, हेंस दे डिडंट लाइक मी, एंड दैट्स व्हाई आई वाज बुलीड बिकॉज आई वाज डिफरेंट। तो ये जो इनसाइट्स है ना, ये दीज आर मतलब ऐसे पर्ल्स निकलते हैं उनसे कि आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सर यू वेरी राइट। मुझे ASD से हमेशा बात करके अपने लिए बहुत सारी लर्निंग मिलती है। They give you so much insight into and they force you to think about different aspects of life जो हम generally नहीं सोच रहे होते because of the different perspective that they have. Their observation is so sharp and the way they are honest, हम तो वो diplomacy और उसके चक्कर में होते हैं, so but the way they are honest ये आपको बहुत life learnings और food of thought दे देते हैं। So sir, coming towards the conclusion, what would you say कि ASDs की एक summarized picture representation of red flags कैसी होती है और पेरेंट्स को क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, रेड फ्लैग्स अगर शुरू से हम शुरू करें, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, वो स्माइल नहीं कर रहे होंगे, सोशल स्माइल उनके ऊपर नहीं होगी, वो चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होंगे,
वो अपनी डिमांड्स, क्योंकि हेल्प सीख नहीं करते, अपनी डिमांड्स किसी को नहीं बताते होंगे, किसी को नहीं छेड़ते होंगे कि ASD का बच्चा जब पैदा होता है ना तो बहुत क्वाइट होता है। अक्सर जो बच्चे होते हैं अनलेस दे हैव गॉट डुअल ADHD उसमें हो तो वो बहुत क्वाइट, और फिर जो चीज़ें सामने आती हैं वो हमेशा ट्रांजिशंस पे आती हैं। स्कूल से घर से स्कूल की ट्रांजिशन, प्राइमरी से सेकेंडरी की ट्रांजिशन, सेकेंडरी से यूनिवर्सिटी की ट्रांजिशन, क्योंकि उसमें चीज़ें बदल रही होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक ऑटिज्म के इंसान को या बच्चे को अगर एक ही इन्वायरमेंट, एक ही लोगों के साथ आप सारी उम्र रखें तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि उसको ऑटिज्म है, इसलिए क्योंकि उसकी इर्द गिर्द हर चीज़ बहुत फेमिलियर होगी। जब वो फेमिलियरिटी चली जाती है, जब अननोन एलिमेंट आ जाता है, तब आपकी चीज़ें सामने वो चीज़ें आती हैं। उसमें लैक ऑफ, जो बच्चों में है, लैक ऑफ इमेजिनेशन भी है, आई कांटेक्ट भी है, वो नहीं करते हैं, दे फील अनकंफर्टेबल, कानों पे हाथ लगा देते हैं, आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, सेंस ऑफ स्मेल उनका बहुत तेज़ होता है, उनके टैक्टाइल सेंसेशंस बहुत तेज़ होते हैं, और उसके अलावा उनकी सोशलाइजेशन नहीं होती, सोशल स्किल्स नहीं होती, इमोशंस पिक नहीं कर सकते हैं। माँ बैठी होगी, रो रही होगी, they'll start staring at mother and then they'll walk away. Most of the times उसमें रीजन ये है कि cannot pick up emotions. दूसरी तरफ ये है कि even if they pick up emotion, they don't know what to do. अगर उन्होंने देखा है कि एक तरीके हग करना और कडल करने का, अगर उनको सेंसिटिविटी है या टैक्टाइल वो है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो दे आर वेरी मच स्ट्रैंडेड के मैं करूं तो क्या करूं, और हम लोग उसे लेबल कर देते हैं कि लैक ऑफ एम्पैथी हो गई है इस बंदे को, तो लैक ऑफ एम्पैथी नहीं हुई है। तो ये चीजें जो हैं, इस पे आप नजर रखें। टिप टोइंग कर रहा होगा, थोड़ा सा क्लमजी होगा, दीवारों में चलते चलते दीवार में वो किया, फिर कुछ चीजें समझता नहीं होगा। अगर एक बच्चा आपको बार बार कह रहा है नो आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, और आप एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, तो आप थोड़ा सा जुमले को सिंप्लीफाई करके बताएं उसे। अगर फिर भी समझ नहीं आता, फिर और सिंप्लीफाई करें। तो ये आपके पास ये साइंस और प्रेजेंटेशंस हैं जिनके बेसिस पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फिर क्लिनिशियन से आप उस चीज़ का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं इसमें एक सिंपल इसकी एग्जांपल दूंगा कि ऑटिज्म का बच्चा ऐसे होता है जैसे एक इंसान मरीख पे उतर गया हो, और उसको मार्शियंस नजर आ रहे हो, जिसके साथ उसको कम्युनिकेट करना ना आता हो, उसकी लैंग्वेज ना आती हो, वो देख तो सकता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही है। This is how people with autism spectrum disorder find themselves in the early years. Right. Sir, a very difficult condition for those who would be going through it. हमें देखकर इतना difficult लग रहा होता है, तो the person who's going through it, उसके लिए हमें sympathetic, empathetic होना है ताकि हम उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें। And with that, I would request all the parents कि आप wait and watch की पॉलिसी पर ना जाएं कि अच्छा देख लेते हैं, लोगों की बातों में ना आए कि मेरा बच्चा भी यूं था, नहीं फलाने ने भी ऐसे किया था। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं विच आर कंसर्निंग, या वो डिफरेंट हैं आपके बाकी बच्चों से या अपनी एज के बाकी बच्चों से, सो डू कंसिडर, आप फ़ौरन अपने क्लिनिशियंस को, पीडियाट्रिशियंस को, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करें ताकि टाइमली उनकी असेसमेंट हो सके और टाइमली मैनेजमेंट हो सके बिफोर इट्स टू लेट. So for that, you can always contact Pehchan Clinic, and you can take an appointment with us or Dr. Khurram, because Dr. Khurram comes regularly to Pakistan and he holds clinical assessments. Very detailed reports are given, and the assessment is based on great psychological tools जिनके लिए Dr. Khurram is trained for. So whenever he comes, हम अपने social media पर सर की availability जो है वो announce करते हैं. So do follow all the social media handles to stay updated. And if there is anything we can do about you to help your child grow and to manage, do let us know. We'll be waiting for you. Thank you. Thank you.